A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the lots of theoretical as well as practical concept related to the chapter 2 of class 12 accountancy, that is an accounting for partnership firm fundamental. And in the last video, we already discussed a lots of the theoretical as well as a practical concept, like how we will calculate the interest on drawing in the different situation, how we will prepare the PL appropriation account and partners capital account, and what are the important journal entries related to the PL appropriation account and partners capital account. So without creating delay, firstly we discuss the difference between the fixed capital method and fluctuating capital method. Thereafter we will revise the very important topic, that is in calculation of interest on drawing in case 2 when amount and the period of drawing are equal, and thereafter we will discuss the rules regarding interest on capital. Okay, so as you know very well, there are basically two methods of the preparation of partners capital account. Two methods. So in today's video, firstly we discriminate and distinguish between the fixed capital method of the fixed capital method and fluctuating capital method for the preparation of partners capital account. So the first point which are related to the fixed capital method is, under the fixed capital method there are two accounts. Two accounts will be prepared. First, partners capital account, and second, partners current account. Whereas in the fluctuating capital account we prepared only one account, that is and partners capital account. Okay, and point number 2, in the fixed capital method all appropriation items like IOC, IOD, salary or commission to partner will be recorded in partners current account, as you know very well. But in the fluctuating capital method, all these items, all appropriation items means जो हम PL appropriation में शो करते हैं, बेसिकली items will be shown in partners capital account. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, that is the difference between fixed capital method and fluctuating capital method. इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, वो है चेंज इन बैलेंस, या कह सकते हो कि करंट अकाउंट नेगेटिव हो सकता है, यानी करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है. बट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो. और इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है वो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस यूज होगा. पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल हमेशा पॉजिटिव रहेगा. लेकिन इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वही चीज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, यानी जस्ट लाइक अ करंट अकाउंट.
डेबिट भी उस बैलेंस आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल इज पॉजिटिव एंड डेबिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल इज नेगेटिव. So this is the difference between the fixed capital method and fluctuating capital method. And now we will move to the case 2, how we will find out the interest on capital when amount and period of drawing are not equal, and thereafter we will move to the rules regarding interest on capital. Okay. Interest on drawing when amount and period of drawing are equal. जब अमाउंट ड्राइंग की या पीरियड ड्राइंग की इक्वल होगी तो सिचुएशन में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए डिफरेंट सिचुएशंस कह सकते हो गिवन है. सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, सिचुएशन 4. सिचुएशन फर्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, interest on monthly drawing during a period of 12 months. Second, interest on monthly drawing during a period of 9 months. Interest on monthly drawing during a period of which month? 9, 3, 12, 6 month. और एक फोर्थ होता है आपका इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग, जहां पर आप क्या करोगे, हर क्वार्टर पैसा निकालोगे. ठीक है. और एक और केस होता है जिसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, जो बेसिकली अब जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही है वैसे वैसे आपकी दैट इज 5 इंटरेस्ट ऑन What? Interest on हाफ ईयरली ड्राइंग. यहां पे आप पैसा कब निकालेंगे? मिड. हाफ क्वार्टरली ड्राइंग, हाफ ईयरली ड्राइंग. ये सब 12 मंथ्स को कंसिडर किया जाता है, क्वार्टरली में भी और हाफ ईयरली में. अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन होगा, तो इन केस ऑफ मंथली ड्राइंग अगर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 होगा, क्योंकि साल में 12 बार पैसा निकलेगा. और इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स है तो कितने बार पैसा निकलेगा? 9 बार निकलेगा. इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स है तो कितने बार पैसा निकलेगा? 6. तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ द ड्राइंग. एंड क्वार्टरली ड्राइंग में कितने बार पैसा निकलेगा? 4 बार, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4. और हाफ ईयरली ड्राइंग में कितने बार पैसा निकलेगा? ओनली 2 बार. सो ये तो हो गया कि जो मंथली ड्राइंग गिवन होगी, क्वार्टरली ड्राइंग गिवन होगी, हाफ ईयरली ड्राइंग गिवन होगी, तो टोटल ड्राइंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12, 9, 6, 4, 2 respectively in the different situation. But the question is, what is the formula of interest on drawing? So interest on drawing कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका फॉर्मूला है. इस केस में फॉर्मूला है amount of drawing into rate upon 100. और हाँ, इसमें भी मैं बता दूं, इसमें भी केसेस हैं, बिगिनिंग, मिड और एंड का. ठीक है. तो बेसिकली फॉर्मूला यही है, तो इसके आगे मैं ऐड कर देता हूं. अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो देयर आर 3 सिचुएशंस. हाउ मेनी सिचुएशंस आर देयर? 3.
ये टेबल विजिबल है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं। यस, इट इज क्लियर। सो देयर आर 3 सिचुएशन एज यू कैन सी दैट, जब हम बिगनिंग में पैसा विड्रॉ करें, मिड में करें और एंड में करें। तो अगर हम बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और मंथली ड्राइंग है, तो वहां पे फॉर्मूला होगा ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6.5 अपॉन 12। मिड में क्या होगा, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। और एंड में होगा ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 5.5 अपॉन 12। ठीक है। दूसरा 9 मंथ्स है और बिगनिंग में पैसा निकालना है, तो फॉर्मूला विल बी ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 7.5 अपॉन 12 एंड ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 4.5 अपॉन 12। नेक्स्ट है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग कर रहे हो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 3.5 अपॉन 12। यहाँ पे हो जाएगा ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 3/12, क्योंकि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ है या 9 मंथ है, तो ये हो जाएगा बिगिनिंग का 7.5, यहाँ 9 मंथ्स में ये चेंज हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट इज एन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स में है आपका 7.5। वेट अ मिनट। सो दिस इज अ करेक्शन। अगर इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स पे आकर, तो बिगनिंग का 5 होगा, मिड का 4.5 होगा, एंड का 4 होगा। और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ है तो 3.5 इज अ बिगनिंग, 3 इज अ मिड एंड एंड के लिए है 2.5। एंड इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग, अगर क्वार्टरली ड्राइंग है तो साल में 4 बार पैसा निकलना है, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मल्टीप्लाई बाई 4 ऑलरेडी आपने किया हुआ है 7.5, बिगिनिंग का है 7.5 और ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100, मिड का हो जाएगा क्वार्टरली है तो ये हो जाएगा 6/12, क्योंकि 12 मंथ एंडिंग ही है। 12 मंथ एंडिंग में आप देखोगे मिड का हमेशा 6 ही रहेगा। 12 मंथ्स यहाँ पे भी 12 मंथ्स है, तो इसका भी मिड हमेशा 6 मंथ ही रहेगा। और यहाँ पे 9 मंथ्स है, तो 9 का हाफ कितना है 4.5, 3 का हाफ कितना है 3, 6 का हाफ है 3। तो मिड कुछ चीजों तक क्लियर है, और इसके लिए आपको 7.5 है, ये हो जाएगा 4.5। और अगर हाफ ईयरली ड्राइंग है तो बिगिनिंग का हो जाएगा 12 मंथ्स के लिए 9 and 3, बिगिनिंग का 9 और इसका हो जाएगा हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 हाफ ईयरली होता है। तो फर्स्ट हाफ ईयरली कब होगा, फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ, यानी 12 मंथ्स बचेगा। और लास्ट हाफ ईयरली कब होगा 1। तो बिगिनिंग में आप अगर देखोगे तो पूरी तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली ड्राइंग है 12 मंथ्स का, तो बिगिनिंग का 9 होगा और एंड का आपका होगा 3। यस, सो दिस इज एन टेबल विच यू हेल्प्स, that is in how we will find out the interest on drawing when amount and the period of drawing are equal. And in this situation you can see that the different situation are there. जब interest on monthly drawing during a period of 12 months, interest on monthly drawing during a period of 9 months, interest on monthly drawing during a period of 6 months, interest on quarterly drawing, interest on half yearly drawing. Multiplication clear हो गया होगा। और इसमें 3 सिचुएशन बनती है, हर सिचुएशंस के 3 केस हैं, बिगिनिंग मिड एंड, बिगिनिंग मिड एंड, बिगिनिंग मिड एंड, बिगिनिंग मिड एंड। तो ये तीनों सिचुएशंस को हमें फोकस करके वी विल फाइंड आउट दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द डिफरेंट सिचुएशन, एंड सिचुएशन में जो केसेस है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लो जैसे मैंने किया है, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर रिवाइज करना हो या न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपको इजिली आंसर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, प्लीज नोट डाउन। और इसमें एक और क्वेरी आपको क्या आ रही है, सर ये व्हाट इज दिस, ये जो दिख रहा है 6.55 3.5, इसका दो तरीका है, या तो आप लर्न कर लो या तो आप
समझ लो कैसे निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज पीरियड. दिस इज कॉल्ड एवरेज पीरियड. और एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्लीज नोट डाउन. So you can see that how we will find out the interest on drawing in the situation 2, and the situation 2 will be when amount of drawing and the time or the period for the drawing is equal. In this situation there are basically 4 to 5 cases will be followed. That is, in first will be interest on monthly drawing during a period of 12 months, interest on quarterly drawing during a period of 12 months, interest on half yearly drawing during a period of 12 months, interest on monthly drawing during a period of 9 months, and interest on monthly drawing during a period of 6 months. So they are basically few cases, and you know very well what is an average product. Average product is a different in the different situation, will be different in the different situation. It means अगर हम लोग एवरेज प्रोडक्ट का टेबल अगर फॉर्म करें, so if we construct a table for the, so अगर टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे एवरेज प्रोडक्ट का, तो बेसिकली कई केसेस हैं, और उस केसेस में अगर हम लोग बिगिनिंग, मिड और एंड का अगर मंथली ड्राइंग भी अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मंथली ड्राइंग बेसिक सिचुएशन में, तो बिगिनिंग का कितना होता है 6.5, मिड का 6, एंड का 5.5. तो ये फॉर्मूला में ऑलरेडी मेंशन होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा. दैट इज एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 in the case of the beginning, mid 6 and end 5.5 divided by 12. So how we will find out the average period in the different situation? ये तो लर्न करने की बात हुई, but actuality में what is the formula of average period? Average product, sorry for that, average period. Average product and average period में काफी डिफरेंस होता है, तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं दैट इज एन एवरेज पीरियड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड? द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड विल बी अ time left after first drawing plus time left after last drawing, the whole divided by 2. यानी टाइम लेफ्ट है फर्स्ट ड्राइंग के बाद और टाइम लेफ्ट है लास्ट ड्राइंग के बाद, अगर आप उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो इट विल बी नोन एज एन एवरेज पीरियड. लेट्स वी चेक अबाउट इट इन केस ऑफ द मंथली ड्राइंग. जब हम मंथली ड्राइंग को फॉलो करते हैं, वेट अ मिनट, सो इन केस ऑफ द मंथली ड्राइंग, you know very well the year is of 12 months: April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. So this is the first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total 12 months are there. So monthly drawing अगर आप कर रहे हैं at beginning, अगर beginning में कर रहे हैं तो यानी आप हर महीने की किस तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहे हो? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. सो अगर आप पीरियड कैलकुलेट करो, फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट कितना हो रहा है फर्स्ट ड्राइंग के बाद? फर्स्ट ड्राइंग आप कब करो? अप्रैल मंथ. उसके बाद कितना टाइम बच रहा है? दैट इज एन 12 मंथ्स. यस, कितना मंथ्स बच रहा है? 12. एंड लास्ट मंथ के बाद कितना मंथ बच रहा है? 1 divided by 2. So 13 divided by 2 equals to 6.5. So you can see that beginning में क्या होता है? beginning में होता है 6.5. yes,
आ गया समझ में? एंड का करेंगे बिग मिड का, चलो मिड का कर देते हैं, सेटिस्फैक्शन रहेगा। 15 15 15, यहाँ पे 15 15 15, सारे 15 डेज डेट को आप ड्राइंग करोगे। तो अगर आप 15 डेट को अगर आप ड्रॉइंग कर रहे हो, इट मींस 15 अप्रैल फर्स्ट ड्राइंग होगी और लास्ट ड्राइंग होगी 15 मार्च। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ्स बचा? 11 कंप्लीट मंथ्स और अप्रैल का हाफ मंथ, तो कितने बचे? 11.5। 11 कंप्लीट मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 पूरे मंथ्स बचे, और लास्ट ड्राइंग कब क्या? 15 मार्च। तो 15 मार्च के बाद कितना महीना बचा? आधा, 0.5, 12/2 = 6। एंड का भी कर लेते हैं, अगर आप 30 यानी लास्ट डे निकालेंगे, सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचेंगे? अप्रैल तो लास्ट खत्म हो गया, सिर्फ 11 बचेंगे। और लास्ट कब ड्राइंग क्या होगा? 31 मार्च। 31 मार्च यानी कि यहाँ पे कोई भी दिन महीना नहीं बचा, यानी 11.2 = 5। So you can see that how we will find out the average period in case of the monthly drawing. अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सर इसी को क्वार्टरली में बता दीजिए। ओके, सो इन केस ऑफ द क्वार्टरली ड्राइंग, यू नो वेरी वेल, हर महीने पैसा नहीं निकलेगा, हर महीने पैसा निकलेगा नहीं। इन केस ऑफ द क्वार्टरली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग के सिचुएशन में आप हर 3 मंथ्स पे पैसा निकालोगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर जो होता है 3 मंथ्स का होता है। सो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज द थर्ड क्वार्टर, एंड जनवरी फरवरी मार्च इज द फोर्थ क्वार्टर। सो अगर आप क्वार्टरली पैसा निकाल लो, तो बिगिनिंग का मतलब ये होता है 1 अप्रैल, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। और मिड ऑफ द क्वार्टर मतलब मई 15, अप्रैल 15, नवंबर 15, फरवरी 15, और एंड ऑफ द क्वार्टर में द 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। सो दिस इज अ डेट। अब उस बेसिस पे अगर हम बिगिनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम बिगिनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग बिगिनिंग के केस में 1 अप्रैल, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 12 महीना पूरा। और लास्ट ड्राइंग आपने कब क्यों की? बिगिनिंग के केस में, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। सर यहां से यहां तक का सफर तय करना है आपको। अप्रैल 1 से, अप्रैल 1 इज द फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग इज जनवरी 1। तो जनवरी 1 के बाद कितना महीना बचा? 3, 15/2 इज 7.5। मिड के केस में क्या होगा? फर्स्ट ड्राइंग आप कब करेंगे? 15 मई, 15 मई, एंड लास्ट ड्राइंग 15 फरवरी। 15 मई के बाद कितना मंथ बचेगा? यस, इसके बाद बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10.5। और लास्ट कब बचेगा? फेब 15। फेब 15 का मतलब है हाफ एंड 1, 1.5, 12/2 = 6। एंड जब आप एंड को फॉलो करो, एंड कब किया? अप्रैल मई जून, जून 30, यानी इस महीने, इस क्वार्टर में कोई महीना नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स। एंड लास्ट ड्राइंग इज 31 मार्च, लास्ट कुछ भी नहीं है, 4.5. So you can see that in the quarterly drawing we have also find out the average period very easily. Okay, so please note down the formula and the concept how we will find out the average period in the different situation, and it is very important for our examination point of view. Okay, so please note down. Let's we solve the few of the important practical questions which are related to the interest on drawing. So calculation of interest on drawing. Let's we discuss about it, how we will find out the interest on drawing. Basically, you know very well what is the formula of interest on drawing.
interest on drawing equals to drawing into rate upon 100 into average period divided by 12. So the first question is, Pooja withdraw 12,000 during the year. P withdraw 12,000 ड्यूरिंग द ईयर. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इट इज नॉट क्लियर कि इट इज अ बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, बट इतना कर रहा है 12,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 6% पर एनम. सो अगर P ने विड्रॉ किया 12,000 ड्यूरिंग द ईयर तो यहाँ कोई भी क्लियर ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं है. सो फॉर्मूला विल बी IUD इक्वल्स टू ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100. और जब कुछ नहीं गिवन होता है तो 6/12 यूज करते हैं. ड्रॉइंग इज 12,000 ड्यूरिंग द ईयर है तो कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा. रेट इज 6% इनटू 6/12. वेरी क्लियर. 2 3 360. So the first answer related to this question is 360. Number second situation will be of Ansh withdraw 4,000 at the beginning of every month. At the beginning of every month, यानी आपको हर महीने कितना निकालना है? 12 months. 12 months का ईयर है. बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ. जब कुछ नहीं बोलता तो वी एज्यूम दैट कि साल कितने महीने का है? 12 महीने का. तो पहले जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा? ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या लगेगा? 6.5/12. इट मींस टोटल ड्राइंग 4,000 कितने मंथ्स का? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12. तो मल्टीप्लाई कितने से होगा? 12 से. रेट 6% और मंथ बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ मतलब 6.5/12. तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 12 से 12 भी कट गया. अब आप चाहें तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. यानी 40 इंटू 6 इंटू 6.5, 65 इंटू 24. 65 इंटू 24 इज 1560. So this is an interest on drawing in the situation number 2. Next we take the one more question. Aditi withdraw, नाम चेंज कर देता हूं, X withdraw ₹5,000 at beginning of quarter. Each quarter, आप हर क्वार्टर में कितना रुपए निकाल लो? 5,000 रुपीज आप विड्रॉ कर दो. सो आप हर क्वार्टर में 5,000 पैसा विड्रॉ करोगे तो इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ IUD विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 7.5/12. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर मतलब आप साल में कितने बार पैसा निकालोगे? 4 टाइम्स. सो 5,000 इंटू 4 करोगे इंटू 6/100 इंटू 7.5/12. और जब इसको सॉल्व करोगे सो वी विल फाइंड आउट दी 750. So you can see that how we will find out the interest on drawing in the condition number 2. That is when period and the amount of the drawing are equal for the year. Okay. और सारे क्वेश्चंस भी गिवन है, उसको भी सॉल्व करिए कॉपी में. So I hope today we cleared all the important concepts related to the calculation of interest on drawing, difference between fixed and fluctuating capital account, as well as the calculation of the average period. Sorry for that. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you. Take care. Goodbye.